Hello friends, myself Dr. Sonali and welcome to my channel called Net Recall. So आज का अपना टॉपिक है कार्टिलेज टिश्यू. Our today's quote is do it now, okay? It means instead of thinking too much or overthinking, start to do something, okay? चलो. So cartilage tissue, it is a fetal precursor tissue in development of many bones. In adult skeleton, it persists at almost all joints between bones and in structures that must be deformable as well as strong. Okay. So cartilage जो होते हैं वो adult skeleton में they are seen at almost all joints. Okay. Between bones and in structures that between bones and in structures that must be deformable as well as strong. It is a connective tissue which is pliant. Pliant means it bends easily. It is covered by fibrous perichondrium except at its junction with bones and over articular surfaces of synovial joints. And it is covered by fibrous perichondrium. और ये exception भी है यहाँ पे. Then और इसका फीचर है its capacity of rapid interstitial and appositional growth in young and growing tissue. तो जो growing tissues होते हैं in that area cartilages grow rapidly. Okay, rapid growth होती है and it is avascular. Avascular means इसका खुद का blood supply वहाँ पे नहीं है. Metabolite transfer to cartilage cells is mostly by diffusion down a concentration gradient. Okay, so जो transfer of metabolite होता है nutrients का it is through process of diffusion. You will come to know about it more in physiology. Okay, so its development is embryonic mesenchyme. This is articular surface. सबसे पहले आता है सुपरफिशियल और टेंजेंशियल लेयर. ये जो लाइन्स है दीज आर नथिंग बट कोलेजन फाइबर्स. दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स राउंड and in middle or intermediate layer. Then देखो deep radial layer because the fibers arranged here are arranged radially. देखो vertically ऐसे arranged ना, इसलिए इसे radial भी बोलते हैं. Then उसके नीचे होता है calcified. तो सबसे ये lower most region है it is calcified. bone और cartilage के बीच में है calcified layer of cartilage. Okay. Then come to composition of cartilage. So cartilage is made up of matrix and cells. Okay. सबसे पहले देखो मैट्रिक्स में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइप 2 कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स विच देन एम्बेडेड इन हाईली हाइड्रेटेड प्रोटियोग्लाइकन जेल. सो एक कोलाजन फाइबर जो होते हैं वो किस में एम्बेडेड है, तो इनको कोलाजन फाइबर्स को बाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स में कुछ जेल होना चाहिए ना, तो इट इज़ प्रोटियोग्लाइकन जेल. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. दीज ब्लू कलर्ड thick fibers are type 2 collagen fibrils and then this pink thing is proteoglycan complex. This is magnified view of proteoglycan monomers. कार्टिलेज में कौन कौन से सेल्स होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कार्टिलेज सेल्स में दो टाइप के सेल होंगे. एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल एंड द अदर वन इज कॉन्ड्रोसाइट्स. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस डिफरेंस. तो बोथ आर formed from mesenchymal stem cells. Okay, but the blast cells are the precursor cells. Okay, then देखो from origin is from mesenchymal stem cells and location is near perichondrium, actively growing cartilage. and हाँ chondroblast जो होता है it is actively growing cartilage होगा. and chondrocyte जो होता है it arises from chondroblast. Okay, तो chondroblast mesenchymal stem cell से अराइज होगा एंड कॉन्ड्रोसाइट अराइज होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट से. देन व्हेन ट्रैप्ड इन लैक्यूने, देन लोकेशन है इनसाइड लैक्यूने ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स. देन देखो शेप ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट इज ओवाइड और इलोंगेटेड एंड कॉन्ड्रोसाइट होता है राउंडेड और पॉलीगोनल. देन साइटोप्लाज्म, कॉन्ड्रोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक, इट इज़ रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ये एक्टिवली रिप्रोड्यूस होता है ना, बिकॉज इट एक्टिवली डिवीजन होता है इसका, इसलिए यहाँ पे
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ज़्यादा होगा, तो इनका क्वांटिटी भी ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस। देन कॉन्ड्रोब्लास्ट में लेस बेसोफिलिक है बिकॉज दे आर लेस एक्टिव। देन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट इज टू बिल्ड कार्टिलेज। ओके, सीक्रेट, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बिल्ड। ओके, इट सीक्रेट्स मैट्रिक्स which is type 2 collagen and proteoglycans rich. Right? Chondrocyte maintain cartilage. It regulate and sustain matrix. Okay, ये मेंटेनेंस का काम करता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करेगा? कार्टिलेज को बनाएगा, बिल्ड। ओके, बट कॉन्ड्रोसाइट क्या करेगा? सी फॉर साइट, सी फॉर सस्टेन। ओके, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बिल्ड, सी फॉर साइट, सी फॉर सस्टेन। तो ये मेंटेनेंस वाला है, तो ये मेंटेन करेगा। देन एक्टिविटी देखो, कॉन्ड्रोब्लास्ट मोर एक्टिव है, उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट जो है ये लेस एक्टिव है। मैट्रिक्स इज नॉट येट सराउंडेड बाय फुल्ली बाय मैट्रिक्स, कंप्लीटली सराउंडेड बाय कार्टिलेज मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सीन देखो, कॉन्ड्रोब्लास्ट ग्रोइंग एंड्स ऑफ कार्टिलेज ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन एंड कॉन्ड्रोसाइट आइसोजिनस ग्रुप्स विद इन मैच्योर कार्टिलेज। ओके, तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही बनते हैं ना, तो जब वो लैक्यूने में ट्रैप होता है तब वो बनते, इसलिए ग्रुप्स में दिखेंगे विद इन मैच्योर कार्टिलेज। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी स्लाइड है विच इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू। देखो, सबसे पहला है हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन मीन्स देखो हाइलोस, हाइलोस से बना है ये वर्ड। हाइलोस मीन्स ग्लास लाइक। ओके, which is made up of type 2 collagen. So look at this hyaline cartilage. Collagen fibers are not evident to eye. Optical illusion. Refractive index of collagen fiber is equal to refractive index of matrix. Okay. Extracellular matrix में प्रोटियोग्लाइकन का जेल है, उसमें कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स बिखरे हुए हैं। एंड हाईलाइन कार्टिलेज में जो कोलाजन फाइबर्स है और उसका जो मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, इसलिए वो ग्लास जैसा दिखता है। ओके, इसलिए वी कांट सी द कोलाजन फाइबर्स। उसमें कोलाजन फाइबर्स है पर हम नहीं देख सकते। ओके, इसलिए हमें वो ग्लास जैसा क्लीन दिखता है, सिर्फ सेल्स दिखेंगे। तो देखो, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो, इस नेस्ट ऑफ सेल्स है और ये पिंक पिंक जो है ये मैट्रिक्स है, पूरा पिंक पिंक वाला मैट्रिक्स है और सिर्फ यहाँ पे सेल्स का नेस्ट दिखेगा, एक ग्रुप दिखेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यून, ये जो लैक्यून बोलते हैं ना, मतलब जो एक एम्प्टी स्पेस में सेल्स आके ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, मीन्स आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, आइलैंड कैसा होता है? मतलब बहुत सारा बड़ा ओशन है और उसमें छोटा सा ही लैंड होता है ना, वैसे आइलैंड मीन्स इस दिस मैट्रिक्स, और इसमें छोटा छोटा कॉन्ड्रोसाइट्स का जो ये ग्रुप है उसे कहते हैं आइलैंड्स। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर MCQs आते हैं। सबसे पहले है फीटल कार्टिलेज, देन ग्रोथ प्लेट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, रेस्पिरेटरी ट्यूब, ट्रकियोब्रोंकियल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, थायरॉइड क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड बेसल पार्ट ऑफ एरिटनॉइड। याद रखना, एरिटनॉइड का बेसल पार्ट का कार्टिलेज इज़ हाईलाइन, बट उसका अपाइकल पार्ट का कार्टिलेज इज डिफरेंट। ओके, ये हमें आगे दिखे, अभी वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, नाउ कम टू इलास्टिक फाइबर्स। नाउ कम टू इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिंगल ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स अपीयर येल्लो, इसलिए इसे येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज ऐसे भी बोलते हैं। एंड कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट एंड दे आर लार्ज इन साइज। यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं दे आर बिगर, लार्जर इन साइज। कॉन्ड्रोसाइट्स एंड देयर इज टाइप 2 कोलेजन, क्लोजली पैक्ड इलास्टिक फाइबर्स आर विजिबल। एंड हाँ, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर जो होते हैं दे आर विजिबल। हाईलाइन में जो कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स थे दे वेर नॉट विजिबल, बट इन इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिन फाइबर्स आर विजिबल। ओके, इन बिटवीन कॉन्ड्रोसाइट्स एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज ऑल्सो प्रेजेंट। देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक है these are fibers and these are cells, so you can see large chondrocytes in lacunae. ये जो lacunae होता है ना, lacunae it is an artifact, they are not present in real but they appear
आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, ओके, जब टिश्यू प्रोसेसिंग होती है ना, टिश्यू प्रोसेसिंग के इसमें जो जो हम केमिकल्स या फिर स्टेन्स यूज़ करते हैं, तब ये जो लैक्यूने होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एज एन आर्टिफैक्ट। ओके, चलो लोकेशन देखते हैं। लोकेशन इज़ एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ एरिटनॉइड, ट्राइटिएट कार्टिलेज and corniculate cartilage, cuneiform cartilage. You can remember this by this formula E3T3C2. okay, external ear and eustachian tube के 2 E and then epiglottis है, 3 E's हो गए, tip of nose, tip of arytenoid, ट्राइटिएट cartilage के 3 T's हो गए, 3 T's 3 E's and then corniculate cartilage and cuneiform cartilage के 2 C's हो गए। ओके, सो ये कॉर्निकुलेट, क्यूनिएट, एरिटनॉइड, ये जो है ये लैरिंग्स के कार्टिलेज हैं। ओके, देन लेट्स सी नेक्स्ट कार्टिलेज विच इज़ फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, सो फाइब्रो कार्टिलेज it is also called as white fibrocartilage. There are lines of chondrocytes. Okay, in it chondrocytes are present in lines alternating with collagen fibers. देखो यहाँ ये कॉन्ड्रोसाइट जो है ये लाइन में प्रेजेंट है एंड देन कोलाजन फाइबर्स है, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स लाइन में प्रेजेंट है, फिर कोलाजन लाइन में है। ओके, एंड कोलाजन फाइबर्स आर मोर एविडेंट, इसमें कोलाजन फाइबर जो ज़्यादा एविडेंटली दिखते हैं। विच टाइप ऑफ कोलाजन फाइबर्स आर देयर? टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स। देन पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, दिस इज एन MCQ पॉइंट। पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पे एब्सेंट है, टाइप 1 कोलाजन फाइबर है। इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर। See this image, don't confuse it with hyaline cartilage. Okay, this is not glossy, and in hyaline cartilage cells were present in nest, है ना, यहाँ पे ऐसे nest में present है और यहाँ पे line में present है ना, the cells are present in lines and thick collagen fibers. This blue thing is nothing but thick collagen fibers. Fibrocartilage is present near the bone or joint, intervertebral disc, articular disc, knee meniscus, glenoid or acetabulum labrum, insertion of tendons, pubic symphysis. ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप 2 कोलेजन फाइबर जो थे दे वर प्रेजेंट इन हाईलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, एंड फाइब्रो कार्टिलेज में था टाइप 1 कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम जो है, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट इन हाईलाइन कार्टिलेज and elastic cartilage, but it is absent in fibrocartilage. So fibrocartilage is something different, है ना, इसमें टाइप 1 कोलेजन है एंड पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, बट बाकी की जो 2 है उसमें टाइप 2 कोलेजन है एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। हाईलाइन कार्टिलेज में सेल्स जो थे दे वर प्रेजेंट इन नेस्ट एंड फाइबर्स वेर नॉट विजिबल, बट इलास्टिक फाइबर्स में larger cells and branching and small elastic fibers are there. In fibrocartilage, cells are present in lines alternating with collagen fibers. Okay, so location जो है बहुत important है। लोकेशन अच्छे से याद रखना है कि हाइलाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलास्टिक कहाँ होता है एंड फाइब्रो कहाँ होता है। फाइब्रोकार्टिलेज तो ईजी है रिमेंबर करना, बिकॉज इंटरवर्टिबल डिस्क जहाँ जहाँ आर्टिकुलर जॉइंट सर्फेसेस हैं वहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज होता है, जैसे कि ग्लिनॉइड एसिटाबुलम लैब्रम एट शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, टेंडन इंसर्शन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, सो मोस्टली दीज आर एट मिड लाइन पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसका फॉर्मूला याद रखना E3T3C2। ओके, E3T3C2 याद रखना एंड देन हाइलाइन कार्टिलेज अच्छे से याद रखो, फीटल कार्टिलेज, ग्रोथ प्लेट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ट्रकियोब्रोंकियल ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एंड थायरॉइड, क्रिकॉइड, कोस्टल कार्टिलेज एंड बेसल पार्ट ऑफ एरिटनॉइड। रिमेंबर वन थिंग, टिप ऑफ एरिटनॉइड इज फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू, whereas basal part of arytenoid जो है it is formed of hyaline cartilage. Okay, so this was our small topic on cartilage. Please watch this, revise regularly and don't forget to follow for more. Thank you.